शामदेद, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल जी। आज चुके एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है सर बेटे साडे प्रोड्यूसर वापस आ गए ने नासिर चिनोटी साहब इस तरह वेलकम करने थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ मामा जी तो भी मारे और बेटे और राना बेटे इतनी बोलना अच्छा। और इंटरव्यू में तो फंबल ना करें आप कम से कम। अच्छा हद हो गई यार। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ। नासिर बेटे ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगे? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਸਿਰ ਚਿਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਲਸਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। और मसलसल टूट रहे हैं यार। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ, ਭਰਪੂਰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा ਲੱਗਿਆ? ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਲਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा माइक दो लगेगा? उसको, यार उठे बैठे दबकी मारी जा रही है। तुम माइक दो उसको। फिर उनका अपना माइक है, मैं क्यों अपना दिया? अच्छा उसने लगाया हो। ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ आफ्ताब बेटे उन्ना विच बोली। ਅੱਛਾ जी नासिर चिनोटी ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਫਨਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ क्या बात है? ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋਗੇ बिल्कुल सही। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहो नासिर बेटे? नासिर चिनोटी बेटे ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ। सहर बेटे बड़े बैठे हैं किस किस्म की गुफ्तगू हो रही मेरे साथ? ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छी खबर ये कि हमारी टीम का बहुत शानदार हिस्सा जफरी खान, गो के जफरी खान पर मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि ये आगाज है। पहली दफा होता है ना कि जफरी खान मुझसे 10 साल पहले मिला होता तो मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका होता। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। जी नहीं, ये एक अलग बात है। जो मैं अगली बात करने लगा हूं वो इसी से मुतल्लिक है। आपकी बात का जवाब है कि दीगर दोस्त तो मेरे अलावा कहीं काम कर सकते हैं और वो चले गए हैं और साबित कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, करके दिखाएंगे। नासिर चिनोटी मेरे बगैर काम कर सकता ही नहीं और इस क्लब में आप भी शामिल होने वाले हैं। आप भी कहेंगे कि मैं आपके बगैर काम कर सकता ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तकरीबन पूरी दुनिया घूम चुका हूं। जहां भी जाते थे ना तो लोग हमें कहते थे कि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई एक्टिंग का, कोई तलफ़्फ़ुज़ सीधा करवाने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। हम भी यही कहते थे यहाँ पे कोई अकेडमी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हम एक्टिंग सीखें, तलफ़्फ़ुज़ सीखें, अपनी लाइन डिलीवर करना सीखें। लेकिन मैं ये कैमरों के आगे पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब का वाहद ऐसा शो है जो एक इंस्टीट्यूट है, जो एक अकेडमी है। यहाँ से लोग जो है वो सीख कर बाहर जाते हैं, फिर पता नहीं वापस आते कि नहीं आते। लेकिन मैं आफ्ताब भाई ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ मैं पठान बच्चा वां जिवें चिनोटी है।
ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ये मजे की बात है, ये नहीं कि वफादारियां नहीं होती प्रोफेशन में, वाकई कोई ये नहीं होता कि ये बेवफाई। हाँ, एक स्टेज आती है कि जहां बेवफाई के जुमरे में मामला आता है, लेकिन यहाँ हमारे मामले में नहीं है। अल्लाह के फजल से हम बी क्या सी टीम के साथ भी अच्छा खेल लेते हैं, डेफिनेटली लेकिन एक होता है काम करने का लुत्फ, बिल्कुल सही, जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। अब मुझे खुदा जानता है, हालांकि हनी के साथ जितनी मेरी मोहब्बत और दोस्ती और शरारत का एक ताल्लुक है ना, खबासत का एक ताल्लुक है, वो शायद किसी और के साथ ना हो, लेकिन काम करके नासिर के साथ बहुत मजा आता है। इसलिए कि सर वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, वो भी कोई सारे हैं हदों सारे की, मैं तो प्यार रोज कहता हूं, रोज उनके बारे में हमेशा। यही तो खूबसूरती है कि अपने घर की, कि यहां से जब भी होगी अच्छी बात ही होगी उनसे मुतालिक। कोई उनके साथ, मैं हमेशा सबको मना करता हूं ये कहना कि जनाब बेवफाई करके चले गए, फलाना करके क्या बेवफाई, ये कोई बेवफाई नहीं है। उन्होंने जो मुनासिब समझा बेशक, बिल्कुल सही। वो किया। वो हैं भागने वाले घोड़े, उन्हें सिर्फ मैदान चाहिए भागने के लिए, लेकिन बाज घोड़े होते हैं जिन्हें सिर्फ मैदान नहीं चाहिए होता, उन्हें अच्छा जॉकी भी चाहिए होता है, बेशक बेशक। क्योंकि वो रेस जीतने के लिए भागते हैं, सिर्फ भागने के लिए नहीं भागते। बिल्कुल सही। नासिर चुनियोटी ये सिर्फ जॉकी देखता है, अच्छा जॉकी होगा ना तो वो पहाड़ क्या, दरिया क्या, सहरा क्या। हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा खूबसूरत मोटो है, सहरास्त के दरियास्त तहे बालो परे मास्त, शेर नहीं सुनाया तो हराम है, मैंने समझ आई गल की हो रही है। कि सहरा हो या दरिया हो, वो मेरे परों के नीचे है। बेशक, क्या बात। सहरास्त, सहरास्त, सहरास्त के दरियास्त, अस्त नहीं कहना, अलिफ इसमें गिरता है, जैसे अमरूद का अलिफ गिरता है ना तो मरूद हो तो जाता है। मरूद निकल आता है। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ठीक। ਜੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਨਸਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਰੰਗੇ ਆ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये शो में कब से नजर आएंगे? ईद पर इंशाल्लाह जो सुपर हिट फिल्म रिलीज होती है ना, जी। लाइक आईना, ओ वाह, लाइक मौला जट, जबरदस्त। लाइक मुगले आजम, लाइक आन, लाइक टाइटैनिक, लाइक बैनहर, चूड़ियां लाइक चूड़ियां ऑफ कोर्स। ईद ही शान शान डे होता है, और ये दोनों ईद पर रिलीज होंगे। जफरी तो ऑलरेडी एयर है, लेकिन चुनियोटी और जफरी की जोड़ी यानी ये ओपनर्स, एक जमाना था गॉर्डन ग्रेनिज और डेस्मंड हेन्स जब निकला करते थे ना पेविलियन से, तो फास्ट बॉलर की टांगे कांपती थी, हालांकि फास्ट बॉलर को देखकर बैट्समैन कांपता है। ये अजीब बिल्कुल रिवर्स था मामला। तो इंशाल्लाह ये जब दोनों ओपन करेंगे तो एक अजीब काम होगा। इंशाल्लाह। सर आज का शेर मैंने नहीं कहा। सुनाई ना, क्यों नहीं सुना रही शेर? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬੈਟਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਉਂਗੇ। ये देखें आप, ये देखें ये पीछे एक साढ़े को ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ। सहर बेटे मौका है, प्लीज तुसी शेर दा कहो। हाँ जी, शेर के बगैर तो बात अधूरी रह जाती है। ਹੈ ਨਾ ਬਸ अच्छा नहीं, मैं नहीं सुनाता, ਚੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। मैं सिर्फ खुशी का इजहार कर रहा हूं कि मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। अल्फाज मेरे पास हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, वाफिर होते हैं, लेकिन इस खुशी को एक्सप्रेस करना, और मैं एक चीज अंडर ओथ कह रहा हूं, हल्फन कह रहा हूं, और आप सबको यकीन है, मेरे व्यूअर्स को भी यकीन है, कम से कम 99.9% लोग मानते हैं कि मैं गलत बयानी नहीं करता। इस तरह मजाक छोटी मोटी आप बात को घुमा फिरा दें तो अलग बात है, मसलहत के तहत कोई चीज छुपा लें ये एक अलग बात है, अदरवाइज द्रोह गोई झूठ नहीं मैं बोलता। मैं साफ कह रहा हूं कि नासिर चुनियोटी के आने से मुझे इस बात की कोई खुसूसी खुशी नहीं कि शो ठीक है इसके लेवल में इजाफा होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस है या कोई दिमाग लड़ाना पड़ेगा। शो का लेवल जाएगा, ऊपर जाएगा। शो माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत ऊपर है, और ये कोई तकब्बर नहीं, इंतहाई आजिज़ी है। ये मैं अल्लाह की हम्द कर रहा हूं कि उसने पता नहीं हम जैसों की क्या चीज देखी है कि हम बहुत थोड़ी एफर्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मल्टीप्लायर जो है ना, ये मैं टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लायर डिवाइन है, इट कम्स फ्रॉम अल्लाह। जो खुशी है ना मुझे, जिसके लिए मैंने ओथ उठाया,
ये कि नासिर के साथ बात करके शरारतें करके उसकी आंखों से टपकने वाली खबासत और वो वल्गैरिटी जिसका ये आइकॉन है, ये मेरी तारीफ हो रही है। उसका सानी कोई नहीं। मैं वो बहुत मिस करता था। थैंक यू सर, थैंक यू। तो Thank you, अब इंशाल्लाह वो सारे सिलसिले के दबे लफ्जों में कि आपने किसी और को बताना भी नहीं, क्योंकि जेंडर का ख्याल रखना, जूनियर्स का ख्याल रखना, लेकिन दबे लफ्जों में आंखों ही आंखों में वो बात कर जाना, वो सिर्फ नासिर चिन्योटी करता था और मैं उसको समझता था। थैंक यू। चलो ना बस मुक की गल नहीं मुकी। उठाएं उठाएं बस चलो बाहर जाओ, बाहर लेट के आओ ना, बाहर लेट के आओ, लेट के आओ। चलो ना जाओ, चलो बाहर। अच्छा चले शेर तो सुना दे। अच्छा जी, शेर फिर इस शर्त पे कि दो होंगे, दो शेर, और फिर फैज अहमद फैज तो आमतौर पे दो शेर इंसाफ करते हैं उनके साथ कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।